Welcome everyone. It's Accra Entrepreneur Premier League. We thanks to our sponsors first, and yes, it's a fourth day of this league. We have captain with us. Firstly, I tell you the owners of the team. Dr. Kanika Batra, who is the owner of Modi Infosys 11, while Anurag Sharma is the owner of UPL 11. So yes, we have both the captains, Mr. Tarun Modi and acting captain, Mr. Sahil Bhandari. So yes, we have both the umpires, and it's time for the toss. And yes, TLC is a call by Mr. Tarun Modi, and it is. Yes, skipper. We'll bowl first. Yes. You yet to open the account in the tournament. Absolutely. Today we are going to open it. So what's the strategy for today? Nothing. We are going to play, enjoy the match. There is no strategy, nothing. And what total you are looking to restrict them? I think 150. We'll try to bowl them out in like below 150. Don't you think that will be quite hefty for you? No, to no, chase no. I down? don't think so. Below 150 is a good score over here. Thank you, skipper. Good luck for the match. And yes, we have Mr. Tarun Modi. So, skipper, you still have the chance to go for the finals if Super Giants and DKDC Stars lose both their matches. And your next match is with the DKDC Stars. Yes, absolutely. There's certainly a chance to reach the finals, and we'll try our level best to put up a good total and hopefully win the match. So even though UAPL has not won any matches, we do not treat them as any underdogs. They have good players, and we hope to have a good competition ahead. Any special plan for them? We were hoping to bowl first, looking at the conditions, but considering that we have the option of batting, we'll try and put up a good score to hopefully get a better net run rate for the tournament ahead. So what total you are looking? I think 130, 150 between that is. They have said enough. that 150. Yeah, they are looking to restrict you. We have a good bowling attack. I know we can restrict them in that manner. Then. Wonderful. Thank you, and good luck for the match. Thank you. And this is from the center. It's UAPL 11 has won the toss and they elected to bowl first. तैयार होते हुए गेंदबाज राउंड द विकेट गेंदबाजी राइट हैंड बल्लेबाज के लिए और खिली हुई धूप के बीच विनय मार्ग स्पोर्ट्स क्लब पटका हुआ है गेंद टाइम उतना अच्छा हुआ नहीं नीचे है खिलाड़ी अच्छा ग्राउंड कवर किया लेकिन इस बार पकड़ ली है ये कैच आप रोकेंगे उतना ज्यादा परेशानी आप मोदी इन्फोसोल 11 के लिए बना पाएंगे क्योंकि चाहे कि मोदी इन्फोसोल 11 की यहां से 2 पॉइंट अर्जित किए जाएं एक बार फिर से एक अच्छा शॉट लेकिन इस समय स्क्वायर लेग एम्पायर की हुई मोदी इन्फोसोल 11 आगे की तरफ वो गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा मिक्सअप हुआ है और मौका बनता हुआ यहां पर रन आउट का जो रनों की गति है वो काफी बेहतर साबित होती है क्योंकि आप विकेट गंवा चुके हैं लेकिन उसके बावजूद रन बॉल आप कोशिश करते हो रन निकालने के एक बार फिर से लाइन से भटके हैं और अच्छा शॉट यहां पर खेला लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए 2020 ये मुकाबला राहुल कर्क एक और गेंदबाज एक और परिवर्तन गेंदबाजी में इस बार अच्छा शॉट और थोड़ा सा लेट रिएक्शन और बॉल बनाने की कोशिश और अंत में थर्ड एम्पायर का फैसला नॉट आउट का फुल टॉस वो गेंद और देखना रहेगा यहां से थर्ड एम्पायर के डिसीजन के बाद स्क्वायर लेग के एम्पायर की बारी और ये तीसरी नो बॉल इस चीजें जो प्लान के बिल्कुल विपरीत इस समय नजर आती है और ये तीसरा नो बॉल है और देखना रहेगा यहां से किस तरह से इस नो बॉल का फायदा उठाया जाता फटका हुआ वो गेंद इस बार खींचा है इस गेंद को लेकिन नीचे खिलाड़ी पकड़ा गया जाता ये कैच की ये पारी टॉस जीतकर आज के इस पहले मुकाबले में यूएपीएल 11 गेंदबाजी करते हुए और विकेट के छोर बदले क्या यहां पर इस मुकाबले का थोड़ा सा रिजल्ट बदलेगा लेकिन आते ही यहां बाउंड्री के साथ अगा कम से कम अगली आखिरी 30 या 36 गेंदों पर 40 या 50 रन अगर जोड़ लेते तो यहां से जो प्रोजेक्ट स्कोर रहेगा वो कम से कम साबित हो सकता है 140-150 के करीब का और वो फाइटिंग स्कोर रहेगा इस पिच पर और लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट हिट लगा है और थोड़ा सा यहाँ अगर कोशिश करें तो शायद बच सकते थे लेकिन बहरहाल
मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, रन आउट हो चुका है। 2 लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, अच्छी लेंथ के साथ शुरुआत करते हुए एक बार फिर से और वापस भेजा गया है रन आउट की एक बार। 13वां ओवर इस समय चलता हुआ, अगले 2 ओवर के बाद जब अंतिम 5 ओवर का समय यहाँ पर रहेगा तो शायद बड़े शॉट्स आप देखें। यहाँ पटका हुआ वो गेंद पुल करने की कोशिश, जोरदार अपील, पचास से ज्यादा रनों की साझेदारी और उसके बाद 2 विकेट। यूएपीएल 11 की उम्मीदों को बरकरार रखें। कोशिश यही होगी कि अगले बचे हुए ओवर्स में, और यहां मौका बनता हुआ आगे की तरफ वो गेंद शॉट लगाने की कोशिश है, उसमें कुछ तेजी के साथ रन बटोरे जाए। फिलहाल 88 रन बोर्ड पर है। 3 बल्लेबाजों का हुआ नुकसान। पिछली 4 गेंदों में 4 सिंगल, एक बार फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। कदमों का इस्तेमाल कट करने की कोशिश, जोरदार अपील हो, क्योंकि गिरते हुए विकेट के बीच आने वाले बल्लेबाजों के लिए इतना आसान होने वाला है नहीं। लेकिन ये जो 2 विकेट पिछले गिरे हैं उसने रनों की गति पर लगाया है अंकुश। इस बीच ये गेंद गैप में खेली है और निश्चित तौर पर 2 रन यहाँ से हासिल। साझेदारी दूसरे विकेट के लिए जिसने एक गति दी, एक बेस दिया बड़े स्कोर का, लेकिन एक विकेट अनुराग सूद के रूप में गिरने के बाद दबाव एक बार फिर से आया है और उस दबाव पर इस समय फिलहाल अंतिम ओवर्स यानी डेथ ओवर्स का ये मुकाबला फिलहाल यहाँ से चलता मोदी इंफोसोल 11 के लिए, और प्रदर्शन यहाँ पर किस तरह से रहता है। लेकिन इस बीच एक बार फिर से यूएपीएल 11 को मिलती हुई सफलता और अंतिम ओवर्स का ये पारी है और आमंत्रण जो मिला था पहले बल्लेबाजी का फिलहाल इस समय एक सही स्टेज पर। कितने रन यहाँ पर कम बनेंगे वो देखना रहेगा, और एक बार फिर से बैक टू द बॉलर अपने फॉल बनाए ताकि गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा यहाँ आसान हो जाए। पटका हुआ वो गेंद खींचा, इस गेंद को 6 रनों में किया है तब्दील, अपने ऊपर से हटाया है सिद्धांत के इस अर्धशतक ने। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, एक बार फिर बड़ा शॉट यहाँ पर और गेंद जाकर गिरी है सीमा रेखा के बाहर, और ये 6 रन यहाँ से रनों की जो गति है या जो आवश्यकता है उसको पूरी तरह से समझते हुए कन्वर्ट करते हैं। बॉलर के निकलने के बाद, बॉलर के हाथ से गेंद छूटने के बाद जिस तरह से बॉडी वेट बैकफुट पर कन्वर्ट किया, उसी तरह से यहाँ पर एक और शॉट, और इस बार कम करने में सफलता यहाँ से मिल सकती है यूएपीएल 11 को। राउंड द विकेट, एक बार फिर से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर उठाकर मारा है, गैप में ये गेंद है, इस बार पहुंचने में मिली सफलता। इंतजार किया बैकफुट के स्कोर बोर्ड को 140 के करीब ले जाने की कोशिश यहाँ पर जरूर होगी। एक बार फिर लेग स्टंप के बाहर घसीटा उस गेंद को, और एक बड़ा हिट, इस पारी का सबसे बड़ा हिट ये साबित होगा, और मैं पूरी तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी को बदल कर रख दिया है। पहला रन तेजी से और केवल 1 रन यहाँ पर मिसफील्ड के चलते दूसरा रन यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह की गलती आप अंतिम 2 ओवर में गियर शिफ्ट किया है। गेम की स्थिति को समझते हुए, खेल की परिस्थिति को समझते हुए, टीम की रिक्वायरमेंट को समझते हुए रन फिलहाल यहाँ पर आते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और लगातार उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर एक और बड़ा हिट एक और आता है, और ये अब अंत मोदी इंफोसोल की जो पारी है उसको बेहतर तरह से फिनिश करने की तरफ देखते हुए। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, बॉलर के सर के ऊपर से निकाला, यहाँ पर हाथ पे लगी है जरूर गेंद, लेकिन निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर, और शुरुआती विकेट हासिल करने के लिए इस समय स्पिन गेंदबाजी के साथ शुरुआत होती हुई उठाकर मारा है गेंद, लेट रिएक्शन, लेकिन 1 रन यहाँ पर ज़रूर मिलेगा और इस किया गया है, और देखना रहेगा इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किस तरह से बरकरार रखा जाता है। विनीत गुप्ता, बढ़िया गेंद, फ्लाइटेड गैप तलाशने की पूरी कोशिश यहाँ पर होगी। 6 रनों की ये साझेदारी, विनीत और आयुष सलामी बल्लेबाज आगे की तरफ। एक बार फिर से वो गेंद डिप करते हुए अच्छी
वर्ल्ड रिक्वायर्ड रन रेट को यहाँ पर बढ़ाएगी और बल्लेबाजों को फिर थोड़ा सा परेशानी। एक बार फिर से बैकफुट पर जाकर खेला, अच्छा शॉट, गैप में ये गेंद और देकर जाएगी 4 रन। जी हाँ, बाउंड्री यहाँ पर, पहला चौका। पंता सुनील जैन और वसुदेव गुप्ता, 2 गेंदबाजी संभालते हुए बल्ले के नीचे है। इस बार अच्छा कनेक्शन हुआ है, पीछे खिलाड़ी है, निकल जाएगी ये गेंद बाउंड्री के लिए और एक और देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद दबाव उस तरह से नजर नहीं आया और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स इस समय नजर आते हुए मानसिकता साफ कि इतनी आसानी से विकेट देने वाले है नहीं। एक बार फिर फुल टॉस, ये गेंद 11 का पहले विकेट के लिए और दूसरी तरफ यूपीएल 11 पूरी तरह से इस समय संतोष नजर आते हुए अपने पहले विकेट के लिए। और अच्छा गेंद बाउंस हुआ है, थोड़ा सा लेट रन जोड़े हैं और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ा है 39। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, जी हाँ, निश्चित तौर पर वाइड करार दिया जाएगा और इस वाइड के चलते फिलहाल आंकड़ा जो है धीरे धीरे अब बढ़ता हो। ये आखिरी ओवर पावर प्ले का और कोशिश यहाँ पर फिलहाल यही होगी कि कुछ सम्मान दिया, खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर पहुँचाया, सिंगल्स पर भी फोकस यहाँ पर रहा है। अभी तक डॉट बॉल्स बहुत कम खेले गए हैं, जिसकी वजह से जो एक रिक्वायर्ड रन रेट है जो या करंट रन रेट जो है वो मेंटेन है। एक बार फिर लेट कट करने की स्पिन गेंदबाजी और टेनिस बॉल अगर आप कहेंगे, जिस हाइट के ये गेंदबाज हैं और जिस हाइट से रिलीज करते हैं, एक बार फिर से खींचा है इस गेंद को, तेज करने की कोशिश और मिसफील्ड के चलते यहाँ पर 4 रन आपको डॉट बॉल के बाद। तीसरी पे चौका, थोड़ा सा वो तेज किया, शॉट रखा गेंद को और बल्लेबाज पूरी तरह से बैकफुट पर थे तैयार। मिसफील्ड के चलते भले चौका मिला हो। एक बार फिर आगे की तरफ हो गेंद, एक बार फिर फ्लाइट में फंसाने की कोशिश, रन आउट का मौका बन सकता है। डायरेक्ट हिट होता तो शायद, अगर रहेंगे तो ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, लेकिन अगर बाउंड्रीज आना शुरू हो जाएगी और जो इंटेंट है यहाँ पर, जो गेम प्लान है वो फिलहाल साफ नजर आता हुआ कि विकेट आसानी के साथ देने वाले हैं नहीं। और एक बार फिर से यहाँ पर क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश और लीजिए मैचेस को आप लाइव देख पा रहे हैं GPMR स्पोर्ट्स पर। और जी हाँ, आगे बढ़कर खेल दिया है, कहाँ गिरेगी अंपायर की तरफ देखना होगा, डिस्पैच कर दिया। जो अगला मैच है वो DKDC के विरुद्ध जीतना होगा, वहीं सुपर जायंट्स और अपने दोनों मैच अगर गवाती है और DKDC अनुराग एक बार फिर से, और ये बड़ा शॉट खेला है, पुलकित ने प्रणाम करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अटैक ही करना होगा। टॉस किया था यूपीएल 11 के हाथ और पहले यहाँ पर सौरभ अपने दूसरे ओवर में एक बार फिर से खेल दिया है बड़ा शॉट और फील्डर एक सिर्फ स्पेक्टेटर ही होंगे। साझेदारी की बात करें तो एक 30 रनों की साझेदारी और पूरे तरीके से अटैक किया है साझेदारी में। अवे फ्रॉम द बैटर, हवा में जरूर वेयर इट लैंड्स। We have to look toward umpire, what umpire towards the bowler, caught at Selim off और स्विच हिट यहाँ पर 4 रन देके जरूर जाएगी। इन दो रनों के बीच का भी फासला ज़्यादा है नहीं, अगर सिंगल्स डबल्स के साथ आखिरी तक लेकर चलते हैं तो भी आसानी के साथ इस मुकाबले को जीत सकते हैं। बशर्ते ये है कि ये ओवर थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर वो मौका मिला और उसके 11 के खिलाफ न केवल बाउंड्री बल्कि सिंगल्स डबल के साथ भी पारी को आगे बढ़ाते हुए अर्धशतक पूरा कर लिया है। करीब बढ़ते हुए यहाँ से इस ओवर के बाद देखना रहेगा क्या सोच रहती है। एक बार फिर से डाउन द लेग साइड वो गेंद पैर पर, बड़ा हिट और जहाँ थोड़ी सी फंसी हुई नजर आई थी टीम, वहाँ आकर सही समय पर एक्सीलेट किया पारी को। ना केवल एक्सीलेट किया बल्कि जिस तरह से एग्जीक्यूट किया अपने शॉट्स को कुछ इस अंदाज में, कैप में, एक बार फिर हवाई फायर और ये 6 रन
6 रन के चलते यहाँ पर आने के लिए इस समय यूपीएल 11 महज 3 रन दूर। शानदार बल्लेबाजी, हवा में खेला गया ये शॉट, टाइमिंग उतना अच्छा हुआ नहीं है, नीचे फील्डर लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर दूर रहता हुआ। जिस तरह से प्रदर्शन किया है, काबिल तारीफ बल्लेबाजी है अपनी गिरते हुए विकेटों के बीच। जिस समय आए थे दबाव था, उस दबाव को अपने गेम से, अपनी बल्लेबाजी से पूरी तरह से बदल कर रखा है इस खिलाड़ी ने, और इस सिंगल के साथ आंकड़ा जो है वो अब बराबरी पर नजर आता हुआ। डॉट बॉल फिलहाल यहां से आता हुआ स्कोर लेवल पर है, और अच्छी बल्लेबाजी, एक शानदार अर्धशतक, जिसके चलते इस समय इस मुकाबले में जीत के तरफ बढ़ते हुए, और पैरों पर वो गेंद 6 रन के साथ समाप्त किया है इस मुकाबले को। और इसी के साथ पुलकित के बल्ले से Welcome everyone. It's Accra Entrepreneur Premier League, and yes, it was a 10th match between Modi Infocell 11 and UAPL 11. At toss went to UAPL 11. They elected to field first, invited Modi Infocell for the batting, and what a fantabulous batting we saw from Modi Infocell. Siddharth really dominated the opponent, made 83 unbeaten, and put the total of 147 with loss of 7 wickets. And what a performance is being shown by UAPL 11. In fact, not only the batting but in the fielding as well. Yes, that was a superb fielding we saw from their few players, as well as if we talk about the batting, superb knock by Pulkit, and they thoroughly finish this match with the victory. They won the match by 7 wickets and put their first victory in this tournament. So yes, applause for the UAPL 11 for putting their first victory in this tournament. So yes, it's time for the captains. Firstly, I would like to invite the losing captain, Mr. Tarun Modi. Yes, you had the chance to qualify for the final if you win this next 2 matches, and something on the equation as well. But now going back to home. I don't think we have any chances of reaching the final at the moment. It doesn't really matter though, but what really matters is that our team performed well, we batted well. Our team has good bowling strength, but today for some reason it just didn't work out. Everybody tried their best. There's no complaints from my end with respect to how my team performed. And hopefully in the next match they will perform better. Like the way UAPL had a 3-0 and now 1, hopefully we'll also have the same and win the next match with excess. But if you talk about your batting, that was really really fantabulous. 83 made by Siddharth, and what went in the run chase? Absolutely. Siddharth performed fantastically as always. He's been the star batsman of our team, star player of our team for that matter. Taken wickets, did the right batting and everything. In the run chase, initially we were always aware that we don't have a 5th strong bowler, but we managed to get out of that trouble as well. I think we have some trouble with respect to extras as always. Today also we had some additional extras than expected, and next match, hopefully we won't have the same mistakes. So yes, hard luck skipper for this match, and good luck for the next match. So yes, we have the winning captain, Mr. Lav Anand. Yes, sir. What will you say about your performance? Yes, Pulkit. Yeah. So the more I say about this match, it was like a competition between Siddharth and Pulkit, and Pulkit has won this hands down for us. So congratulations to him, entire team. It's the first match we have won. We have bounced back, and this is the beginning. Hopefully, we'll go on to win the next match as well. And when they put the really hefty total on the board, what was running in your mind in the run chase? So we had our plan set out. We wanted to keep our best men for the last part of the chase. As you have seen in their batting also, they made most of the runs in the last few overs. So we had confidence that if we can give a decent start to our team without losing too much of wickets, so they can definitely, the target is gettable, and that's what we won comfortably. And last thing I would say, sir, कहीं आने में देर तो नहीं हो गई इस tournament में? It's never too late, and in cricket we only have
winners and givers. So we have been giving. It's the day they have given us a win on platter, and hopefully we will continue this. Yes, sir. Thank you, sir, and we congratulate you for the for this match, and yes, good luck for the next match. So it's time for the awards. So first we will go with the best fielder. Yes, best fielder goes to the game-changing man Sahil Bhandari. That was really the turning point of the game. Thank you. And best bowler. Yes, best bowler goes to Pranav. Bowled 4 overs, gave 20 runs and back 2 wickets. Wonderful performance by Pranav. And best batsman goes to Siddhant. Made 83, remained not out. नेक्स्ट सीजन के लिए 10 करोड़ का रेट कर लिया तूने अपना 10 करोड़ का रेट हो गया भाई नेक्स्ट सीजन का रेट बढ़ा लिया है इस बार भी सस्ते में दिया था And any guesses for the man of the match? Yes, is it Pulkit? आज इसकी कहानी टेबल पे बैठ के सुनानी है बहुत बढ़िया पुलकित Back 2 wickets. Made 59 of 23. Yes, thank you, Pulkit. So yes, this is it from the presentation ceremony. So yes, next match is on. That is between Toronto Bank and Mavericks. Where toss went to Mavericks and they elected to bowl first. Yes.